Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 8. Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द चैप्टर पार्ट, टेक आउट द बुक्स and turn to page number 167. Okay, that is the page where we left in the last lecture. We dropped our previous lecture here, and we're about to start the fourth paragraph that is at the bottom of this page. So page number 167, paragraph number 4. Pankaj was surprised. So here it is said that after watching the view of genie's lamp, Pankaj was very much surprised. Pankaj was था surprised, आश्चर्यचकित. आश्चर्यचकित, surprised का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना. So आश्चर्यचकित हुआ, ईडी लग गया है स्टूडेंट्स. डी लगने के बाद वो हो गया उसका पास्ट फॉर्म. सो अब वो हो जाएगा आश्चर्यचकित हुआ. पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज आश्चर्यचकित हुआ था. सो यहाँ कहा गया है कि पंकज ने जब जीनी के लैम्प का वो व्यू देखा जिसमें हर तरफ सिर्फ डस्ट ही डस्ट पड़ी थी और हर चीज़ इधर से उधर बिखरी हुई पड़ी थी, तो वो आश्चर्यचकित हो गया. जैसे ही आप किसी चीज़ को हाथ लगाते तो वहाँ पर एक क्लाउड, बादल आ जाता डस्ट का, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. So Pankaj was very much surprised after watching all this that even if you pick up anything, a cloud of dust would appear there. Now moving further, the genie felt ashamed and apologized. Okay, so here it is said that the genie felt very much ashamed and guilty of his act and was very much ashamed. Since he also apologized, he said sorry to Pankaj. The genie, वह जिन, felt, महसूस हुआ, ashamed, ashamed यानी शर्मिंदा होना, ashame यानी शर्मिंदा होना, to ashame, so it is ashamed, शर्मिंदा हुआ, and or apologized. So word is apologize. It is apologized is the past form of apologize. अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना. सो इस सेंटेंस का मतलब है जीनी को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, शर्म महसूस हुई और उसने माफ़ी मांगी. किससे मांगी? पंकज से. ही सेड दैट a genie's job was very important and he had no time for cleaning. Okay, so in this context, genie adds that it was his job that made him busy and was very much important and he did not had time for cleaning all this. He, वह, said, कहा, that के a genie's job, एक जिन की जॉब ड्यूटी was थी, very, बहुत, important, महत्वपूर्ण, and और ही, वह, had no time, नहीं था समय, for cleaning, साफ सफाई के लिए, for के लिए, cleaning यानी साफ सफाई. So students, यहाँ पर जीनी कहता है कि उसका जो काम है वो काफ़ी ज़रूरी है और इसी वजह से उसके पास साफ सफाई का टाइम नहीं था. But Pankaj remembered. Now turn to page number 168. But Pankaj remembered
his mother's advice. Now here Pankaj remembers his mother's advice, her advice. But लेकिन पंकज remembered, याद आया, his उसके mother's माँ की advice. The word advice means salah. Students, advice means salah. He told the genie that it was important to keep all his things in order. So he says to genie that it is important to keep your all things in order. पंकज को अपने माँ की सलाह याद आई. ही वह, told कहा या कहता है, द जीनी जीनी से, जिन से, दैट के, इट वॉज इम्पॉर्टेंट यह बहुत ज़रूरी है, टू कीप रखना, ऑल हिज सारी उसकी थिंग्स चीज़ें, इन ऑर्डर. इन ऑर्डर मीन स्टूडेंट्स उसको व्यवस्थित रखना, एक के बाद एक प्लेस करना इन ऑर्डर. तो पंकज कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है जीनी के लिए कि अपनी सारी चीज़ों को वो व्यवस्थित रखे. एंड सो कॉमा दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन. सो हियर आफ्टर एडवाइजिंग द जीनी, पंकज sees him to clean the place together. And so, और so, फिर they उन्होंने decided निर्णय लिया, to give देना, the place जगह को, a good एक साफ, clean सफाई. So इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि इस जगह को एक अच्छा साफ सुथरा बना दिया जाए, इस जगह को अच्छा क्लीन कर दिया जाए. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर योर लेक्चर. मूविंग टू होमवर्क पार्ट. नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे. दैट इज सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर. क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 8, लेक्चर नंबर 4. हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट वन इज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड का मतलब चौंक जाना या आश्चर्यचकित होना. स्टूडेंट्स, सरप्राइज्ड का मतलब होता है चौंक जाना या आश्चर्यचकित होना. दिस इज द पास्ट फॉर्म, ये उसका पास्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म इसका होता है SURPRISE, उसमें D नहीं लगता है, सरप्राइज ही होता है. सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित हुआ या चौंका. सेकेंड वर्ड इज अशेम्ड, ASHAMED, अशेम्ड. अशेम्ड भी सेकेंड फॉर्म है अशेम का, ASHAME, अशेम यानी शर्माना, अशेम्ड यानी शर्मिंदा हुआ. थर्ड वर्ड इज अपोलोजाइज, APOLOGIZED. ओके, सो देयर इज सम डिफरेंस. यू कैन राइट ZED और SED. इन द सेंटेंस इट इज SED, but you can write both and both are correct. Apologized is the past form of the word apologize. Apologized भी past form है उसके first form का, apologize का. apologize यानी माफ़ी मांगना. Fourth word is advise. To advise means सलाह देना. advice का मतलब होता है सलाह देना. So students, you have to learn and write these hard words in your notebook in neat and clean handwriting. Note, send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. Okay students, I hope you like the video. Thank you for watching.